નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, તમે નિહાળી રહ્યા છો સાંઈ ગ્રુપ મીડિયા હાઉસ દ્વારા સંચાલિત બજાર અને બજારની અંદર આજે અમે આવી પહોંચ્યા છે ભારતી એક્સાના 15મી વર્ષગાંઠ નિમિત્તે સ્વામિનારાયણ મંદિર ખાતે કે જ્યાં ભારતી એક્સા કંપની દ્વારા આજે એમની 15મી વર્ષગાંઠ ઉજવાઈ રહી છે। એ 15મી વર્ષગાંઠ ઉજવણીની સાથે સાથે 2022ની અંદર જેમણે વીમા કંપની ક્ષેત્રે ખૂબ અગ્રેસર રહી અને પોતાનું પરફોર્મન્સ આવ્યું છે એવા તેજસ્વી તાલાઓનું સન્માન પણ કંપની દ્વારા કરવામાં આવી રહ્યું છે। તો ચાલો નિહાળીએ ભારતી એક્સાની 15મી વર્ષગાંઠ નિમિત્તેની અમુક ઝલકો। ગુડ આફ્ટરનૂન, થેન્ક યુ વેરી મચ ફોર એવરીથિંગ। મનીષ સર છે આપણા નવા ટ્રેનર, એમણે આજે ઘણી સરસ સરસ વાતો કરી, મને બહુ ગમી, બધી મારી લાઈફ સાથે કનેક્ટેડ હતી। કદાચ અમારું કરિયર ને મારું કરિયર સાથે જ ચાલુ થયેલું 2006થી। મેં બી ત્યારે જ એડવાઇઝરની એક્ઝામ આપી હતી। 2007માં મેં આઈસીઆઈસીઆઈ પ્રુડેન્શિયલમાં એડવાઇઝર તરીકે લાયસન્સ લીધું અને ત્યારે જ કામ કરવાનું જૂનું મને બધી માર્કેટમાં વાત મળ્યા પછી જ આવ્યું કે મને કામ કરવું જોઈએ એડવાઇઝર તરીકે। મને સરસ લાગ્યું, લાયસન્સ લઈ લીધું પછી ઈચ્છા મળી ગઈ કે નહીં યાર આની મજા આવે। મેં ઓલરેડી બિઝનેસમેન છું અને મનીષભાઈ હું બી સિંહ રાશિનો વ્યક્તિ છું, એટલે મને કોઈને રિક્વેસ્ટ કરવાનું સમજાવવાનું એ ગમતું નહીં હતું, એટલે મેં નહીં કરતો હતો કામ। પછી મારા એક બ્રાન્ચ મેનેજર આવ્યા આઈસીઆઈસીઆઈમાં, એમણે મને એક બિઝનેસ પાર્ટનર, અત્યારે આપણે બીબી ચેનલ છે એની ઓપોર્ચ્યુનિટી બતાવી, મને કીધું કે તમારો એડવાઇઝરનો કોડ બી રાખો, તમારી વાઇફને અંદર મેનેજર બનાવી દો, એવું બધું સમજાવ્યું અને મેં ડિસેમ્બરમાં એક જ મંથમાં એમડીઆરટી કમ્પ્લીટ કર્યું 2007। બિઝનેસ પાર્ટનરમાં ત્યારે કોમ્પિટિશન હતી લેપટોપની કે જો તમે 35 જણાને બેસાડો ફોર્મ ભરીને અને 35 જણાને એક્ઝામ અપાવડાવો, પાસ થાય કે ફેલ થાય તો તમને લેપટોપ મળશે। તો ત્યારે મને લેપટોપ મળ્યું હતું, મેં 35 જણાને બસ કરીને લઈ ગયો હતો। એ ત્યારથી મારી શરૂઆત થઈ। પછી થોડા કારણોથી મેં પછી છોડી દીધું 2008થી। 2014થી ધર્મેન્દ્ર પરમાર અને હેમલ સાહેબ કન્ટિન્યુ મારા ફોલોઅપમાં રહ્યા, જબરજસ્તીથી મને ભારતી એક્સામાં લઈ આવ્યા। હું એમનો બહુ આભારી છું, એમના લીધે હું ભારતી એક્સા જોઈન કર્યું। મને એમ કઈ બી ડેટ યાદ રહેતી નથી, 30/7/2014 એ ડેટ મને આજે બી યાદ છે। મને મારી વાઈફની બી બર્થડે યાદ રાખવી બહુ અઘરી છે, મને બહુ ડિફિકલ્ટ છે, પણ આ મને ભારતી એક્સાની ડેટ યાદ છે। જર્ની ફોર્મ ભર્યું ને ત્યારે ધર્મેન્દ્ર પરમાર અને સર સાથે મારી એક જ ડીલ થઈ હતી કે જો તમારાથી દોડાત હોય મારી સાથે તો જ મારું ફોર્મ ભરવાનું, નહીં તો નહીં। અને એ લોકો થાકી ગયા। આવી રીતે મારી શરૂઆત થઈ। કન્ટિન્યુ ભારતી એક્સામાં મારું 5 વખત એમડીઆરટી થયું, એસબીઆઈ લાઈફમાં એકવાર એમડીઆરટી થયું, એટલે આ મારું 7th એમડીઆરટી છે, 7th ટાઈમ એમડીઆરટી। એની અંદર આ ટોટલ જર્નીમાં મને મારી ફેમિલીનો ભયંકર સપોર્ટ રહ્યો છે, ખાસ કરીને મારી વાઈફનો। મારી વાઈફ સેજલબેન લાડ, એમણે મને ભયંકર સપોર્ટ કર્યો। મારી ફેમિલીને અંદર બહુ મેડિકલ ઇસ્યુ હતા, જેમાં એમણે મારી ફેમિલીને બહુ સારી રીતે સાચવી છે ટાઈમ પર, તો હું બહાર કામ કરી શકું। તો થેન્ક યુ વેરી મચ સેજલ, અને થેન્ક યુ વેરી મચ હેમલ સર, તમે મને અહીંયા સુધી લઈ આવ્યા। ધર્મેન્દ્ર પરમાર, થેન્ક યુ વેરી મચ, તમારો ખૂબ સપોર્ટ છે, થેન્ક યુ વેરી મચ સર। એવી કઈ હોસ્પિટલ છે જ્યાં કેન્સર માટે સર્જરીની સેવા હોય, કીમોથેરાપીની સારવાર હોય, રેડિયેશનની સારવાર હોય, પીટી સીટી સ્કેન હોય, કેન્સરની પેથોલોજી હોય, મેમોગ્રાફી હોય, એટલે કે બધું જ, હા બધી જ સારવાર એક જ હોસ્પિટલમાં હોય, તે છે નવસારી નિરાલી કેન્સર હોસ્પિટલ। હવે આપણે વાત કરીશું મनीष शर्मा जी સાથે, જેઓ ट्रेनिंग हेड પણ છે અને मोटिवेशनल स्पीकर પણ છે। सबसे पहले तो आपका जो काम है, आप ट्रेनिंग देते हो, तो मैं पहले ये पूछना चाहूँगा कि अगर मैं एक आम बंदा हूँ तो मुझे इंश्योरेंस क्यों ज़रूरी है, मुझे क्यों इंश्योरेंस लेना चाहिए? ये तो आप मेरे घर पे आके मुझे ही मार डालोगे और मेरी फैमिली को जो है वो अच्छी अच्छी बातें करके मेरी जेब में से पैसा लेके जाओगे। ये मेंटलिटी जो है ये दिमाग में एक फिट है गुजराती बंदे के। आप गुजरात में आए हो और गुजरात में आपको गुजराती को एक इंश्योरेंस बेचना है, तो आप कैसे बेचोगे? थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहता हूँ नवसारी ब्रांच के क्लस्टर हेड हेमल ठक्कर को, जिन्होंने बहुत ही शानदार तरीके से अपनी टीम के साथ काम करते हुए 15 साल पूरे करे हैं। और नवसारी एक बहुत छोटा सा शहर है, लेकिन ये ब्रांच इतना ज़बरदस्त काम करती है कि दूसरे रीजन और दूसरे जोन के कई बड़े बड़े शहरों से भी ज़्यादा अच्छा काम होता है। और उसका सबसे जो प्रमाण वो यही है कि यहाँ की जो टीम है
वो सही सिस्टम के ऊपर काम करती है, सही ट्रेनिंग के ऊपर काम करती है और सही कंसेप्ट पे काम करती है, तभी तो लोग खरीदते हैं। अब जो आपका सवाल है, तो मैं आप ही से पहले सवाल करना चाहूँगा कि रात को 10 बजे आपको अपनी फैमिली के साथ कार लेके नवसारी से अहमदाबाद जाना है, तो आप क्या क्या तैयारियाँ करेंगे सर, ज़रा मुझे बताइए। हाँ, जैसे आपने बताया वैसे कि भाई अगर मुझे जाना है तो मैं पेट्रोल देखूंगा, गाड़ी देखूंगा, फैमिली की सेफ्टी देखूंगा, अपने जेब में क्या पड़ा है क्या नहीं पड़ा है वही सब देखूंगा। यानी कि आप ये पूरी बंदोबस्त करेंगे कि आपकी फैमिली को कोई परेशानी ना हो उस 3 से 4 घंटे की जर्नी में, है राइट? या यू आर राइट। और ये सब आप इसलिए करते हैं क्योंकि आपको पता है कि मेरी फैमिली मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है और उनको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, सिर्फ 3 से 4 घंटे के लिए। तो मेरा आपसे एक सवाल है कि एक आदमी जो मान लीजिए कि 30 साल का है और वो कम से कम 60 साल की उम्र तक कमाएगा, तो क्या उसको अगले 30 साल की जर्नी के लिए नहीं सोचना चाहिए कि कल को अगर मैं ना रहा तो मेरी फैमिली कैसे चलेगी? जब 4 घंटे के लिए वो इतना सोच रहा है, पैसे का बंदोबस्त कर रहा है, गाड़ी को चेक कर रहा है, उसके अंदर खाना पानी सब कुछ रख रहा है, तो अगली 30 साल की जर्नी के लिए भी उस इंसान को अपनी फैमिली के बारे में सोचना चाहिए। और यही कंसेप्ट के साथ हम नीड बेस्ड प्रोडक्ट सेल करते हैं और नवसारी ब्रांच में आज हम इतने सारे कस्टमर से कनेक्ट कर पाए हैं, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव प्रोडक्ट बेचना नहीं होता, हमारा ऑब्जेक्टिव है ज़्यादा से ज़्यादा इंडियन फैमिलीज़ को फाइनेंशियली सिक्योर करना, और इसी मिशन पर हम लगे हुए हैं। और जैसे कि आपको बीच में से मैं रुकूंगा और पूछना चाहूँगा कि जैसे भी आपके जो है तो जोनल हेड ने बताया कि जब आप मार्केट में उतरे थे नवसारी के, तब करीबन 12 कंपनियां थी, अब सिर्फ 6 कंपनियां रह चुकी है। तो 6 कंपनी में आप हैं और आपने 15 साल नवसारी के मार्केट में पूरे किए हैं, तो उसकी वजह क्या है? सर, सबसे बड़ी वजह है कस्टमर सर्विस। हमारे पास में है डेडिकेटेड क्लेम हैंडलर, मतलब अगर कोई क्लेम हमारी ब्रांच में रिसीव होता है तो डेडिकेटेड क्लेम हैंडलर इस बात का बंदोबस्त करते हैं कि कस्टमर के घर वालों को पीछे से कोई परेशानी ना हो और क्लेम प्रोसेस बड़े ही आसानी से हो जाए। और अभी आप वापस से बीच में रुकूंगा क्योंकि हर बार जो है एक कस्टमर जो है बेसिक कस्टमर है, आपके पास कस्टमर कोई ऐसा नहीं कि भाई सब डॉक्टर ही आने वाले हैं या सब इंजीनियर ही वाले हैं, कोई एक रेकड़ी वाला है या मान लीजिए कि कोई एक दुकानदार है या एक बनिया है। अब वो तो बोलेगा कि भाई आपने बोला था कि भाई सिग्नेचर कर दो यहाँ पे, मैंने सिग्नेचर कर दिए, फिर आप जो स्टार लेके आते हैं, मार्क लेके आते हैं, भाई ये तो फैसिलिटी जो है इनका जैसे OMG बना है, जो OMG के अंदर एक केस एक्ट ऑफ गॉड, तो ऐसा कुछ भी होता है, हर बार कोई ना कोई जो होता है वो प्रावधान में ऐसे कुछ हो ही जाता है जिसको हम गुजराती में बोलते हैं छटकबारी। तो उसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहली चीज़ तो इंश्योरेंस के अंदर ऐसा कुछ नहीं है, वो फिल्म से सिर्फ एक ऐसा ही चीज़ होता है कि सुसाइड क्लेम। इंश्योरेंस के अंदर सभी बीमा कंपनियों में नियम है कि पहले साल के अंदर अगर कोई आत्महत्या कर लेता है अपनी इच्छा से तो ही इज़ नॉट एलिजिबल फॉर क्लेम, लेकिन 1 साल के बाद तो वो भी कवर करती है इंश्योरेंस कंपनियां। तो इंश्योरेंस को खामखा बदनाम किया जाता है उन लोगों की वजह से जो खुद ना तो सिक्योर होना चाहते हैं ना दूसरों की खुशियां देखना चाहते हैं। इंश्योरेंस की वजह से लोगों के परिवार में एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी फैलती है सर। इंश्योरेंस में हर तरह का क्लेम मिलता है। जब आप सोचिए कि कंपनी सुसाइड भी कवर कर रही है 1 साल के बाद, तो दूसरे क्लेम के लिए क्यों मना करेंगे? हमारी कंपनी का 99.07% क्लेम सेटलमेंट रेशियो है, अच्छी कस्टमर सर्विस है और इस वजह से हम दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर रहे हैं। मैं आप सभी लोगों को एक यही मैसेज देना चाहूँगा कि न केवल अपने परिवार की सिक्योरिटी करें, उल्टा जितने भी लोगों को आप जानते हैं उनको भी बताइए कि कम से कम इतना बंदोबस्त करके आप रखिए कि कल को आप ना भी रहें तो आपके परिवार को किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़े। थैंक यू सो मच सर। તો જે પ્રમાણે તમે જોયું કે એક ટ્રેનિંગ હેડ અને સાથે જ મોટિવેશનલ સ્પીકર છે, બહુ સરસ શબ્દોની અંદર સમજાવ્યું કે જો અહીંથી અમદાવાદ જવું હોય તો આપણે તૈયારી કરતા હોય અને એ અમદાવાદ સુધીની તૈયારી માટે આપણે ફેમિલીને કોઈ તકલીફ ના પડે એ વિચારતા હોય તો આખી જિંદગીનો સવાલ છે। તો ચોક્કસથી ભારતી એક્સા જે ખરું એના 15 વર્ષ પૂર્ણ થઈ ચૂક્યા છે, તો ત્યારે એમના જે ઝોનલ હેડ છે, ઝોનલ હેડની સાથે પણ આપણે વાત કરવાનો પ્રયાસ કરીશું ને એમની પાસેથી જાણીશું કે જે આ 15 વર્ષનો શ્રેય છે એ શ્રેય કોને આપે છે। સર, તો ये 15 सालों का श्रेय है, आप किसको देना चाहेंगे? थैंक यू एवरीवन। एंड अगर हमने 15 साल बिताए हैं, इसका एकमात्र श्रेय जाता है एज अ ऑर्गेनाइजेशन हमारी क्लैरिटी ऑफ थॉट के लिए। नाउ क्लैरिटी ऑफ थॉट में 3 चीज़ ज़रूरी होती है। पहला, जो हम कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं, दूसरा कैसे करने वाले हैं और क्या करने वाले हैं। एंड हर कर्मचारी भारतीय एक्सा का ये क्लैरिटी रखता है कि हम ये चीज़ क्यों कर रहे हैं। जैसे मैं बताऊं, हम क्यों कर रहे हैं। आज की डेट में इंडिया के अगर इंश्योरेंस की बात करूं, आउट ऑफ एवरी 100 पीपल ओनली 4 आर इंश्योर्ड। रीज़न एकमात्र है, इंश्योरेंस बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोडक्ट है एंड लोगों को समझ में नहीं आता। एज ए कंपनी ये हमारा मिशन है, इन दिस कॉम्प्लिकेटेड वर्ल्ड वी वांट टू मेक लाइफ इंश्योरेंस सिंपल। ये हमारा पर्पस है, ये हमारा वाई है।
अगर इसको करने के लिए जो कंपनी के सिद्धांत है, प्रिंसिपल है, जिसको हम फॉलो करते हैं, जिसको हम बोलते हैं कोर वैल्यूज़, इसमें सबसे पहला वैल्यू है कस्टमर फर्स्ट। हमारे लिए हमारा कस्टमर पहला है, जो वो बोले वही सही है। दूसरी वैल्यू है टेकिंग ओनरशिप, मतलब हर भारतीय एक्सा का कर्मचारी एक ओनरशिप के साथ काम करता है। एंड तीसरा डू द राइट थिंग, हम जो सही है वही करेंगे, जो कस्टमर के लिए सही है वो करेंगे। एंड फाइनली एक्सेल एवरी डे, हमारा प्रयास रहता है कि हम हर दिन कुछ नया करें, कुछ अच्छा करें, बेहतर करें। एंड हेंस ये क्लैरिटी की वजह से मेरे को लगता है भारतीय एक्सा 15 साल से इस ब्रांच में काम कर रही है एंड हेंस हम सस्टेन कर पाए। साथ ही में जब आपने शुरू किया था तब नवसारी ब्रांच का जो टर्नओवर था और आज 15 साल में आपने कितना ग्रो किया है, कितनी फैमिलीज़ को आपने कवर किया है, मतलब कुछ फिगर्स के जिसकी वजह से भारतीय एक्सेस जो है वो आज भी 6 कंपनियां जो बची उसमें अग्रसर है। तो मेरा मानना है, आई थिंक नवसारी की जो पॉपुलेशन है 2.5 लाख के करीब पॉपुलेशन है। करीबन हमने नवसारी में करीबन 3-3.5 हज़ार फैमिलीज़ को प्रोटेक्ट कर चुके हैं इन लास्ट 15 सालों में। एंड पिछले वर्ष से हमने ग्रोथ के टर्म्स में 100% ग्रोथ दिया है, जहां पर इस ब्रांच ने पूरे साल में करीबन 6.5 करोड़ का बिजनेस विथ परसिस्टेंसी ऑफ 97%, मतलब 97% लोग वापस रिन्यूअल देने आए हैं। एंड जो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड कहता है 80-85 के बीच में चलता है, बट इस ब्रांच की जो कस्टमर फर्स्ट वैल्यू है कि कस्टमर को हम सही बेचें, उसके वजह से हम यहाँ आज तक 15 साल में रह पाए। तो दर्शक मित्रों, જે પ્રમાણે તમે જોયું તે પ્રમાણે કે ભારતીય એક્સા કંપની જે ખરી એનું 15મું વર્ષ નવસારી બ્રાન્ચનું આજે ઉજવી રહી છે, તો એના વિઝ્યુઅલ્સ પણ આપણે બતાવીશું કઈ રીતે ટ્રેનિંગ અપાય છે અને કઈ રીતે એ લોકો પરિવારને જોડી રહ્યા છે। નવસારીમાં રાહત દરે ઉત્તમ સારવાર મેળવવાનું સ્થળ એટલે કેજલ લાઇફ ઇન મલ્ટી સ્પેશિયાલિટી હોસ્પિટલ, જ્યાં સામાન્ય ઓપીડી ઉપરાંત સર્જિકલ બાળરોગ, સ્ત્રી રોગ, ઓર્થોપેડિક જેવા વિવિધ વિભાગોના નિષ્ણાંત તબીબો, અત્યાધુનિક સુવિધાઓ સાથેનું આઈસીયુ તેમજ મા કાર્ડ અને આયુષ્માન કાર્ડ હેઠળ સારવાર ઉપલબ્ધ છે। તો આ હોસ્પિટલનું સરનામું નોંધી લો। નેશનલ હાઈવે નંબર 48 સ્વામિનારાયણ મંદિર સામે કબીલપુર નવસારી। અને વધુ માહિતી માટે સ્ક્રીન પર દેખાતા નંબર પર સંપર્ક કરો। इस नीचे वाली चीज को बाद में देखेंगे। व्हाट आर द कॉमन ऑब्जेक्शंस? फील्ड में जाते हैं तो क्या क्या समस्याएं आती है। तो मैं आप सब लोगों को देखकर मुझे आइडिया लग गया क्या क्या सवाल आते होंगे। तो मैं कुछ सवाल दिखा रहा हूं, कुछ और बच जाए तो आप जरूर बताइएगा। तो पहला सवाल, प्रोस्पेक्टिंग खत्म हो गई सर हमारी, तो लिस्ट खत्म हो गई, किससे बात करें? यस और नो सबसे बड़ी समस्या है। अगर आपको लगे कि अच्छा सवाल आया, अच्छा जवाब मिला, तो आपको ऐसे कहना है मजा आ गया। क्या कहना है? जोरदार। क्या बात है, इनमें से कोई भी एक चीज बोल सकते हैं ना। तो अगर आपको मैं ऐसा फॉर्मूला दे दूं कि लिस्ट कभी खत्म ही ना हो, मतलब जिसे कहते हैं ना कि कभी खत्म ना होने वाली लिस्ट। તો આ પ્રમાણે આજ રોજ સ્વામિનારાયણ મંદિર ગ્રીડ ખાતે એના કોન્ફરન્સ હોલની અંદર ભારતી એક્સા કંપની દ્વારા 15મી વર્ષગાંઠ નવસારી બ્રાન્ચની ઉજવણી કરવામાં આવી હતી। સાથે જ વર્ષભરમાં એમના કર્મચારીઓ દ્વારા જે ટોપ એચીવર્સ છે એમને એવોર્ડ પણ આપવામાં આવ્યા હતા અને સાથે જ માર્ગદર્શન પણ પૂરું પાડવામાં આવ્યું હતું। તો આ પ્રમાણે એક સરસ મજાનો કાર્યક્રમ ભારતીય એક્સા કંપની દ્વારા નવસારી ખાતે યોજવામાં આવ્યો હતો અને આ જ પ્રમાણે બજારની અંદર અવનવા સમાચારો માટે નિહાળતા રહો નવસારી લાઈવ।